Hello students, welcome back. Children, few days we have been discussing regarding the meaning of economics. Then last lecture children we spoke about what are called as the physical sciences and social sciences. So present lecture children, we are going to focus on the different definitions of economics. Basically speaking children, if you talk like what exactly is the meaning of economics, so we are aware that economics word is derived from the word oikonomia, which means how to manage or household management. And economic children, as everyone knows, is known as the queen of all social sciences, and that was termed by Paul Samuelson. So children, we are here to understand the different definitions of economics today, and three different definitions we'll be analyzing. How it started in the classical period, then coming towards the neoclassical, and then modern economics. When we go to define economics, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितने इकोनॉमिस्ट होते हैं उतने ही इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस होते हैं, क्योंकि हर एक इकोनॉमिस्ट अपने पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक्स को डिफाइन करता है. So the three economists who have defined economics, we will be talking about that in this lecture. So to start with children, the father of economics, and most of you have heard about him, is none other than Adam Smith. Children, Adam Smith, who has defined economics. Now he was a classical economist and is also called as the father of economics. The definition which was given by Adam Smith is referred to as wealth-oriented definition. What does it mean, children? That means while defining economics, he has focused on the wealth aspect of economics. For many of us children, whenever we are asked कि लाइक आपको भी जब भी कोई पूछता है कि लाइक सर व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आप बोलते हो कि सर इकोनॉमिक्स मतलब पैसा. अर्थशास्त्र करके क्लास टाइम वर्ड मैंने आपको बताया था कौटिल्य के बारे में. सो एनी स्टडी चिल्ड्रन विच इज रिगार्डिंग वेल्थ, and wealth is, I told you children, a very comprehensive word which includes all the assets, all the resources, money, jewelry, everything will be a part of wealth. So तीन चीजें आप यहाँ पे याद रखोगे. सबसे पहले डेफिनेशन दिया किसने है? एडम स्मिथ. दूसरा, उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है बच्चों लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन. अभी सवाल आता है बच्चों लोग कि डेफिनेशंस आते कैसे हैं? ऐसे तो है नहीं कि सुबह सुबह उठे फिर आपने व्हाट्सएप का स्टेटस अपडेट कर दिया और बोला कि हाँ ये इकोनॉमिक्स होता है. नहीं चिल्ड्रन, बेसिकली दिस स्टडीज दे कम थ्रू सम बुक्स. तो इसका मतलब ये भी है कि सर एडम स्मिथ ने भी कोई बुक लिखा रहेगा ना जिसके जरिए इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया था. यस चिल्ड्रन, ही हैड रिटन अ बुक दैट वाज इन द ईयर 1776. और 1776 में उन्होंने जो बुक लिखा था उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. ओके, सो क्या क्या याद रखोगे बच्चों आप इसमें? Certain points to highlight here children. सबसे पहले the definition is given by Adam Smith, right? Adam Smith is also referred to as father of economics. तीसरी बात, the definition is known as wealth oriented definition of economics. Then he had written a book. What was the year children? 1776. बुक का नाम क्या था? So the name of the book was children an inquiry into the nature and causes of wealth of nations. अभी आप बोले सर इतना लंबा बुक का नाम, ये नाम है बुक का क्या बुक ये पूरा करके, बट दैट इज इट. कभी आप शॉर्ट में बोलना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो रिफर टू इट एज वेल्थ ऑफ नेशंस. ठीक है, अभी सवाल ये आता है कि लाइक सर इन्होंने डिफाइन किया था वो समझ में आया, वेल्थ ओरिएंटेड था वो भी समझ में आया, एडम स्मिथ ने डिफाइन किया था. वेल्थ ऑफ नेशंस के जरिए डिफाइन किया था. Now the question arises children कि like sir definition क्या था? So how did he define economic children? It's a simple definition that he gave and that is called as economics is a science of wealth. तो आपका भी भाट हो गया रहेगा, क्या बोल सकते हैं इसको? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ.
मतलब any study children which focuses or whose main material of study is wealth is called as economics, and we know that economics is a social science. Clear? तो आप जब भी ये डेफिनेशंस पढ़ोगे तो आप ऐसे पॉइंटर वाइज पढ़ोगे. सबसे पहले नाम देने का एडम स्मिथ, फिर बोलने का फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बोलने का उन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था. 1776 में उन्होंने एक बुक लिखा था, बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस. एंड अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ. हो गया बच्चों लोग. That's what we generally refer to it as the work given by Adam Smith. Children, 1776 for the first time किसी के माइंड में आया कि हाँ हम लोग ये जो वेल्थ के बारे में स्टडी करते रहते बार बार, इसको हम लोग अलग नाम दे सकते हैं. एंड देन दे से कि लाइक हाँ it doesn't mean children कि लाइक 1776 से पहले इकोनॉमिक्स नहीं था. It existed. It's a branch of study. But the studies evolved only after 1776. जब एडम स्मिथ ने बोला था कि like what is economics? So it's economics is the science of wealth. Okay. Now from his definition, children, we arrive at some important key concepts we can say. सबसे पहली बात, he believes in what is known as laissez-faire. What is laissez-faire, children? Laissez-faire is a French phrase जिसका मीनिंग होता है let the people do what they want. मतलब लोगों को जो चाहिए वो करने दो. हर बार गवर्नमेंट को अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है. इट्स लाइक समटाइम्स ऑल्सो रिफर टू एज अ नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगा तो उसको बोलते हैं laissez-faire. कुछ चीजें ऐसी होती है बच्चों लोग कि अगर आप उनको आजाद कर दोगे ना तो वो लोग बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं. सो मार्केट्स कैन बी वेरी हाईली एफिशिएंट if they are left alone. So that is why there is no need for the government to interfere. ये सबसे पहली बात हो गई. दूसरा, capital and wealth accumulation. Children, when we study about economics, जनरली हर एक ह्यूमन बीइंग का एक अल्टीमेट एम जो होता है कि उसको अपने जरूरतों को पूरा करना है. अभी सवाल आता है कि लाइक सर हाउ टू सेटिस्फाई आवर वांट्स. तो उसके लिए हमको क्या लगता है? रिसोर्सेस. सो चिल्ड्रन, एनीथिंग विथ विच वी कैन सेटिस्फाई आवर वांट्स कैन बी कॉल्ड एज रिसोर्स. रिसोर्सेस का एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं वेल्थ. अच्छा, इंसान का हर एक एक्टिविटी किसकी तरफ जाता है बच्चों? हम लोग वेल्थ कमाते हैं, फिर हम लोग वो वेल्थ को एक्यूमुलेट करते हैं और बाद में उस वेल्थ को हम लोग खर्च करते हैं. अच्छा, जो वेल्थ हम लोग खर्च नहीं करते उसको हम लोग बचा के रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेविंग्स. अच्छा, वो सेविंग्स धीरे धीरे बाद में क्या बन जाती है? इन्वेस्टमेंट. और जो पैसा बच्चों लोग बिजनेस में इन्वेस्ट होता है उसको हम लोग इकोनॉमिक्स में या फिर अकाउंट्स में क्या बुलाते हैं? कैपिटल. सो this definition talks about capital and wealth accumulation. Accumulation मतलब जमा करना होता है. अच्छा, then nature's law in economic affairs. Nature's law, children, and see human behavior, just because man is a social animal, but at the same time, children, this is a nature's law that everyone wants to satisfy their wants. Everyone likes to collect wealth for themselves. Everyone wants to accumulate that wealth. Everyone wants to enjoy a high standard of living. So that all nature's law is followed in economic affairs. And point number 4, children, the division of labor is an aspect of growth theory. आपने देखा रहेगा पुराने जमाने में जब प्री हिस्टोरिक मैन के बारे में पढ़ते थे हम लोग, तो दे यूज्ड टू बी लाइक लिविंग इन द फॉरेस्ट, फॉर एग्जांपल कि लाइक केव्स में रहते थे. धीरे धीरे हमने देखा बच्चों लोग कि लेबर डिवाइड होता गया, स्पेशलाइजेशन होते गए. अच्छा, आर्टिसंस वगैरह डेवलप हुए. देयर आर सम पीपल हु कुड डू द वर्क ऑफ कारपेंटर, तो दे बिकेम कारपेंटर्स. कुछ गोल्ड स्मिथ थे, कुछ ब्लैक स्मिथ्स थे, कुछ फार्मर्स थे, कुछ हंटर्स थे. हाँ, और इसी से बच्चों लोग ग्रोथ होता है, आप सबको पता है. मतलब if one person tries to do everything, we know like he won't be able to make any growth in his life. तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा रहेगा कि जब हम लोग बचपन में स्टडी करना चालू किए थे तो हम लोग को सब सब्जेक्ट साथ में पढ़ाते वो लोग. 10वीं तक तो मसाला मार के सब कॉकटेल बना के सब पढ़ाया गया था. अच्छा, अभी 11th में आने के बाद आपको किसी ने पहली बार पूछा है कि आपको कॉमर्स करना है कि आर्ट्स या साइंस. तो दिस इज व्हाट चिल्ड्रन, डिवीजन.
अच्छा, उसके आगे भी जाके आपको पूछा जाएगा, आप अकाउंट्स में जाना चाहते हो, इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हो, मार्केटिंग में जाना चाहते हो, मतलब धीरे धीरे आपका ग्रोथ हो रहा है। बट फॉर दैट ग्रोथ चिल्ड्रन, डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब 6 के 6 सब्जेक्ट्स निकाल के पढ़ना चालू करोगे तो आपको पता कुछ नहीं होने वाला है आपका। तो आप क्या करते हो, डिवीजन करते हो कि आज मैं ये सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, कल मैं वो सब्जेक्ट पढ़ूंगा करके। ओके, सो दैट इज द डिवीजन ऑफ लेबर इज द एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। ये 4 पॉइंट्स है बच्चों जो इंपॉर्टेंट फीचर्स माने जाते हैं एडम स्मिथ के डेफिनेशन। सबसे पहले नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कैपिटल को और वेल्थ को जमा करने का, नेचर्स लॉ फॉलो होता है बच्चों इकोनॉमिक अफेयर्स में, और डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, नाउ दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट दे हैव गिवन देयर चिल्ड्रन, यू कैन रीड इट फॉर योरसेल्व्स। डू यू नो पॉल रोमर एंड विलियम नॉर्डॉस, उनको भी बच्चों नोबेल प्राइज मिला था फॉर इकोनॉमिक्स में इन द ईयर 2018। अच्छा, he developed some growth theories, कौन, Paul Romer, whereas Nordhaus, he has contributed to the environmental economics, so that was for something of your general knowledge. Okay, बाकी के नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में भी आप जान सकते हो थोड़ा, जैसे कि नोबेल लॉरेट एक आते हैं, कौन, अमर्त्य सेन। ओके, तो आई थिंक लाइक पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक्स या फिर सोशल इकोनॉमिक्स, he has written lot of that and he has also won a Nobel Prize। चलो, पहला डेफिनेशन क्लियर हो गया बच्चों अपना। द सेकेंड डेफिनेशन चिल्ड्रन, इट इज फोकसिंग ऑन व्हाट्स नोन एज वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। बच्चों एडम स्मिथ के डेफिनेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि ही फोकस ओनली ऑन वेल्थ, पैसा यानी इकोनॉमिक्स, प्रॉपर्टी यानी इकोनॉमिक्स। लेकिन बच्चों लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं कि जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारा मतलब बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन फिर वो पैसे को वो लोग अगर अपने लाइफ के लिए यूज नहीं करेंगे तो सवाल ये आता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दैट मनी इफ यू डोंट यूज दैट मनी फॉर बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ। तो एडम स्मिथ के डेफिनेशन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था बच्चों लोग, और वो ड्रॉबैक क्या था, दैट ही डिड नॉट फोकस ऑन human beings, he did not focus on man, he did not focus on humanity, he just focused on that wealth, he just focused on property, he just focused on money. So according to Adam Smith children, that man is actually an economic man who focuses only on money. But I think there is a more comprehensive view of this definition children, which says that man is a social man, और इंसान को बच्चे लोग अपनी जरूरतों को पूरा करना होता है। तो एडम स्मिथ के डेफिनेशन का जो ड्रॉबैक था उसको सॉल्व करने के लिए शायद प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल केम अप विथ अनदर डेफिनेशन, और उनके डेफिनेशन को हमने यहाँ पे नाम दिया बच्चे लोग वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा, उधर क्या था बच्चे लोग, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। हियर व्हाट आर वी गोइंग टू से, इट्स अ वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। सो who was Adam Smith children? Classical economist. Who is Professor Alfred Marshall? Neoclassical economist. These are various phases of economic history we can say. So he has given the welfare oriented definition of economics, and in that welfare, so here it is children, सबसे पहले आप नाम याद रखोगे, कौन सा, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ओके, अच्छा, कौन सा डेफिनेशन दिया, अच्छा, कौन सा इकोनॉमिस्ट से पहले, नियोक्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ये तीसरा पॉइंट बच्चों लोग, व्हाट काइंड ऑफ डेफिनेशन हैज ही गिवन, तो बोलने का वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। अच्छा, बुक कौन से ईयर में आया था उनका, इन द ईयर 1890। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, अभी मैं आपको कंपैरेटिवली बताता हूँ बच्चों लोग, बट बिफोर दैट लेट अस आल्सो हैव अ लुक एट व्हाट वाज द डेफिनेशन गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। So he says that economics is a study of mankind in the ordinary business of life. Acha, and one more thing children, ki like the definition that is given by Alfred Marshall, it examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and the use of material requisites of well-being. अच्छा, लेकिन ये लंबा सा डेफिनेशन बात करने से अच्छा ये जो मैंने हाईलाइट किया बच्चों लोग बोर्ड पे, इसको अगर आप बात करोगे तो भी काफी रहेगा आपके लिए। ओके, अच्छा, अभी आप थोड़ा सा इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, बाद में आप चाहो तो एक छोटा सा कंपैरेटिव चार्ट भी बना सकते हो आप इसमें से। यस, सबसे पहले टाइटल क्या दोगे,
वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, दूसरा टाइटल क्या रहेगा, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो होता है वहां पे आप लिखोगे एडम स्मिथ, यहाँ पे लिखने का अल्फ्रेड मार्शल, उधर लिखने का क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इधर लिखने का नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। अच्छा, वहां पे ईयर मेंशन करो 1776, यहाँ पे ईयर मेंशन करोगे क्या 1890। अच्छा, फिर बुक का नाम बताना है आपको, वहां पे बुक का नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यहाँ पे बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी। उधर का डेफिनेशन क्या था, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। यहाँ पे क्या बोलोगे, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। बच्चों पूरा का पूरा फोकस चेंज हो गया अगर आपने देखा रहेगा तो। उधर वो क्या बोलते हैं, इट्स अ साइंस ऑफ वेल्थ, दैट मींस फोकस इज ऑन वेल्थ, पैसा। यहाँ पे हमने बोला कि नो, फोकस इज ऑन नॉट ऑन वेल्थ बट हाउ मैन और ह्यूमन बीइंग्स यूज दैट वेल्थ इन ऑर्डर टू अचीव वेल बीइंग और वेलफेयर। तो अपने वेलफेयर के लिए वो पैसा कैसे यूज करते हैं हम लोग, उसको इकोनॉमिक्स बोला जाता है। क्लियर। अच्छा, अभी सवाल आता है कि इनके डेफिनेशन के मेन पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहली बात, इट्स अ स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, मतलब इट्स अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। दूसरा, इट्स अ बिहेवियरल साइंस, कि लोग कैसे बिहेव करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करते वक्त, ये पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। इट्स अ स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, मतलब मटेरियल से अपनी चीजों को जरूरत पूरा करने के लिए जो चीजें हम लोग खरीदते हैं उसमें से अपना वेलफेयर। जैसे कि मुझे एक अच्छे से घर में रहने का, तो घर मटेरियल हो गया। मतलब मुझे गाड़ी चलाने, तो गाड़ी मेरे लिए क्या होता है, मटेरियल। अच्छा, आई वांट टू हैव अ लेटेस्ट फोन, तो दैट इज अ मटेरियल, और इससे अपना वेलफेयर बढ़ता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली अ स्टडी ऑफ वेल्थ बट इट्स अ स्टडी ऑफ मैन। मतलब इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसे का स्टडी नहीं है, वो इंसान का स्टडी होता है बच्चों। क्लियर? Yes. Now, going from that, children, for our today's discussion, the next definition that we have in line here, as you can see here, Lionel Robbins. अच्छा, उन्होंने जो definition दिया था वो क्या था, scarcity oriented definition of economics. So here it is, children, like this: wealth oriented, welfare oriented and scarcity oriented. जब लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वेल्थ को जमा करते हैं तो वेल्थ डेफिनेशन हो गया। अच्छा, वो वेल्थ को जब आप खुद के लिए यूज करोगे देन चिल्ड्रन इट बिकम्स अ वेलफेयर डेफिनेशन। अच्छा, जब ये रिसोर्सेज को आप यूज करके अपने वांट्स को पूरा करोगे तो आपको अचानक से पता चलता है कि हम लोग को जितने रिसोर्सेज चाहिए उतने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे आता है चलो शॉर्टेज या फिर स्कैरसिटी, और ये स्कैरसिटी डेफिनेशन आ गया था बच्चों। And I feel, children, that this is the most popular definition of economics. अच्छा, सबसे पहली बात कि उन्होंने कौन सा बुक लिखा था, तो एन essay on the nature and significance of economic science, ये उनका बुक था। कौन से ईयर में आया था बच्चों, 1932। अच्छा, और उसमें उन्होंने स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अच्छा, तो क्वेश्चन अराइजेस कि लाइक सर कैसे डिफाइन किया इन्होंने इकोनॉमिक्स को, तो ही सेज दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इंसान किस तरीके से बिहेव करता है ये पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन कौन से रिलेशन में, तो बोलने का एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स आर जनरली चिल्ड्रन वांट्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव गॉट ऑल्टरनेटिव यूजेस। मतलब क्या कि देखो चीजें शॉर्टेज में है तो ह्यूमन बीइंग्स किस तरीके से बिहेव करते ताकि अपनी अनलिमिटेड वांट्स को स्केर्स रिसोर्सेज के साथ हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। और जो स्केर्स रिसोर्सेज है उसके यूजेस कैसे होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस। अच्छा, लेकिन वो पॉइंट्स आगे आपको हाईलाइट किए हुए मिलेंगे। एंड हाउ हैव दे हाईलाइटेड हियर से चिल्ड्रन, सबसे पहला वांट्स आर अनलिमिटेड। ये तो मैंने आपको हमेशा सिखाया हुआ है कि आपकी जरूरतें बच्चों लोग अनलिमिटेड होती है। कोई बंदा नहीं होगा बच्चों लोग जिसके वॉन्ट्स अनलिमिटेड नहीं होते या फिर लिमिटेड होते। अच्छा, दूसरी बात, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों जो रिसोर्सेस मिलते हैं वो कैसे रहेंगे, लिमिटेड क्या अनलिमिटेड, लिमिटेड। तो बहुत सारी जरूरतें और बहुत कम पैसा, ये दो प्रॉब्लम्स हो गए। और एट द सेम टाइम चिल्ड्रन देयर इज वन मोर प्रॉब्लम कि सब वांट्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते। वांट्स आर ग्रेडेबल। वांट्स कैसे होते हैं, ग्रेडेबल। मतलब आप उसको प्रायोरिटी दे सकते हो कि सर ये वांट मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पहले पूरा करूंगा, इसके बाद में अगर पैसा बचेगा तो मैं इसके लिए जाता। तो आप रैंकिंग दे सकते हो, आप प्रायोरिटी दे सकते हो, प्रेफरेंस दे सकते हो। यस।
अभी ये क्यों प्रायोरिटी देना पड़ता है बच्चों, क्योंकि मीन्स हैव गॉट ऑल्टरनेटिव यूज। मेरे को पता है कि मेरे पास 50 रुपए और मेरे को ये भी पता है कि मुझे उसको सिर्फ रिचार्ज मारने के लिए यूज करना है, तो बच्चों मुझे कोई प्रॉब्लम होता नहीं था। लेकिन मुझे ये पता है बच्चों कि वो 50 रुपए के जरिए मैं या तो रिचार्ज भी मार सकता हूँ, मैं एक नोटबुक खरीद सकता हूँ, या फिर मैं नाश्ता कर सकता हूँ, या फिर सपोज फॉर एग्जांपल के लिए मैं उसी पैसे को बचा के भी रख सकता हूँ, या फिर किसी का लिया था उसको वापस करने का है उसके लिए। आपने देखा पैसा काम और जरूरतें बहुत सारी, और पैसे का यूजेस अलग अलग, राइट। अच्छा, तो दिस इट। सो आप इसको ऐसे एनालाइज कर सकते हो बच्चों, वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड, वांट्स आर ग्रेडेबल और मीन्स हैव गॉट ऑल्टरनेटिव यूजेस, and that is children how we generally talk about these definitions. Clear everyone? So as you can see children, as you can sum up, we have learned three different definitions of economics: wealth oriented, welfare oriented and scarcity oriented. एक और आता है जो आपके सिलेबस में दिया नहीं है, जिसको हम लोग ग्रोथ ओरिएंटेड बोलते हैं, जो ऑलमोस्ट लाइक 1948 में लिखा गया था पॉल सैमुअलसन के जरिए, बट वी डोंट हैव दैट फॉर आवर स्टडीज। अच्छा, अभी आपने कुछ वर्ड्स देखे रहेंगे बच्चों लोग यहाँ पे, क्लासिकल, नियो क्लासिकल, मॉडर्न। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि लाइक ये अलग अलग वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर चिल्ड्रन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डेफिनेशंस थोड़ा रिवाइज करके दूंगा, एंड देन वी विल कंटिन्यू फर्दर विथ न्यू कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। टिल देन, बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।